Assalamu alaikum dear students. I hope that you are all doing fine. So far in our videos we have completed first three units. Now we are going to continue our discussion from unit number 4, and from unit number 4 to unit number 9. We have six different novels that we are going to cover. The first one among these six novels is Joseph Antius, and the complete title of the novel is A History of the Adventures of Joseph Andrews and His Friend Mr. Abraham Adams, and it is written by Henry Fielding. Okay, now this Henry Fielding, he is known as the father of English novel, and he is rightly said so because he started this literary genre. And we are going to look at his life, and then we are going to briefly go through the summary of this novel, and then we are going to look at the characterization or Henry Fielding's art of characterization, and after that we are going to look at how Henry Fielding incorporated realism in his novel by simply uh, criticizing the contemporary society in which he was living. So these will be our main points of discussion. Let us begin with life of Henry Fielding. Now you will be wondering that why is it that life of Henry Fielding or life of the author is very important. Now, in order to develop understanding of any piece of literature, we need to have understanding of the life of the author, the circumstances in which he was brought up, the books he read, and the people, those who influenced his life, and how is it that he came to write, what were his motivations behind writing. All these questions are always very significant, all these questions are always very important in order to develop understanding of any piece of literature. It is not simply about novel, rather same thing is applicable on plays, and same thing is applicable on you can say poetry and other forms of literature as well. So Henry Fielding, he was son of British general named Edmund Fielding, and he was born in British county of Somerset on April 22nd, 1707. As far as education is concerned, he received formal education and he went to a private school named Eton. Now, in English, we have two famous schools. One is named as Eton, and the other one is named as Harrow. So he was fortunate enough because of his father's good financial situation that he was able to get education at school of Eton. Now, in 1728, he decided to study law and he went to Holland. However, he was unable to complete his education because of financial constraints, because his father, because of his poor financial conditions, because his financial situation deteriorated, so he was unable to support his son. So he left his degree incomplete and returned back. However, he was able to re-continue his education in 1737, and later in 1740 he completed his law and he became barrister. So he started his career as a lawyer, and he also started working as a writer, यानी कि उसने प्ले जो थे प्लेस को प्रोड्यूस किया initially. However, what happened is that his plays were not immediate success because of uh, the policies of the government, because he was strong क्रिटिक ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हुकूमती पॉलिसीज थी उन पर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद करता था। इस वजह से इसके प्लेस को सेंसर कर दिया गया, ठीक है। तो जब इसके प्लेस को सेंसर कर दिया गया तो एज अ ड्रामेटिस्ट इसका कैरियर जो था वो 1737 के अंदर आप ये कहें कि एंड हो गया। और चूंकि थिएट्रिकल लाइसेंसिंग लॉ भी आ गया कि जी आपने पहले लाइसेंस लेना है, आपने ड्रामा अप्रूव करवाना है, उसके बाद उसको थिएटर में लॉन्च किया जा सकता है। और इसके प्लेस जो थे वो चूंकि हुकूमती पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता था, तो लिहाजा इसके प्लेस को सेंसर कर दिया गया। और सेंसरशिप की वजह से ये जो है वो नाकामी की जानिब जो है उसने मूव किया, ठीक है। यानी कि
As a playwright, he became an unsuccessful writer. Now, because his career ended as a playwright, but he was a writer. He had this creative ability with him, यानी कि ये खुद से चीजें create कर सकता था. So he decided that I am going to try my hand at prose fiction, ठीक है. So he tried his hands at prose fiction, and his first work was Shamila. Shamila is a piece of work that is written as parody of literary artist Samuel Richardson's very popular novel पैमेला. तो उसके रिस्पॉन्स में लिखा और इसका नाम इसने शैमिला रखा. ठीक है. फिर उसी क्रिटिसिज्म को या उसी पैरोडी को फर्दर इसने एक्सटेंड किया. ठीक है. और ये जो अभी हम नावल पढ़ेंगे, जोसेफ एंड्रयूज, हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड अब्राहम एडम्स, ये भी उसी की एक्सटेंडेड पैरोडी है. इस नावल को 1742 के अंदर पब्लिश किया गया और इस नावल के अंदर जोसेफ एंड्रयूज की स्टोरी है. और ये जो जोसेफ एंड्रयूज है, ये उसी पैमेला का भाई है जिस पैमेला की स्टोरी रिचर्डसन जो है वो अपने नावल के अंदर लिखता है. ठीक है. तो हेनरी फील्डिंग जो है वो हमें ये बताना चाहता है कि वर्च्यू इज नॉट ऑलवेज रिवॉर्डेड. कि आप अगर ये कहें कि जी आई एम अ वर्चुअस इंडिविजुअल एंड आई विल बी रिवॉर्डेड इन वन वे और इन अनदर वे, सो ही सेज वर्च्यू इज नॉट ऑलवेज रिवॉर्डेड. और वो ये कहता है कि ये जो रिचर्डसन ने आइडिया दिया है वर्च्यू रिवॉर्डेड का पैमेला के अंदर, ये गलत है. और वो उसी पैमेला के भाई जोसेफ की मिसाल देता है, हु decided not to get seduced by Lady Booby, and in return, although he has preserved his virtue, although he remained virtuous, but he was fired from his job, or he lost his job. यानी कि although he should have been rewarded just like Pamela, but he didn't get the reward, rather he lost his job. ठीक है. अच्छा, ये जो नावल है जिसको हम जोसेफ एंड्रयूज के नाम से जानते हैं, इट इज रिटन पिकरस स्टाइल. पिकरस का वर्ड जो है वो पहले भी कई दफ़ा मैं यूज़ कर चुका हूँ प्रीवियस यूनिट्स के अंदर. तो ये डॉन क्योटे जो कि पिकरस नावल था, उसी की टेक्निक को इमिटेट करते हुए या उसी की टेक्निक को कॉपी करते हुए हेनरी फील्डिंग ने ये नावल लिखा है. ठीक है. इस नावल के अंदर जो किरदार क्रिएट किए हैं हेनरी फील्डिंग ने, वो सिंपल एंड ऑनेस्ट किस्म के लोग हैं ज्यादातर से. ऑब्वियसली all society is not composed of honest people. So following the real pattern of a society, all the characters in this play or in this novel, sorry, are not honest. However, the leading characters like Joseph Andrews, Abraham Adams, and Fanny, they are all honest and simple people. ठीक है. ये सादा किस्म के लोग हैं जिनको वो पोर्ट्रे करता है, जो कि एक अक्सरियत, एक बहुत बड़ी तादाद में उस जमाने में हुआ करते थे. ठीक है. इसके बाद हेनरी फील्डिंग ने दूसरा नावल लिखा, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन वाइल्ड, जो कि 1743 के अंदर पब्लिश होता है. ठीक है. और ये जो स्टोरी है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ जोनाथन वाइल्ड, इट इज स्टोरी ऑफ अ criminal. ठीक है. चूंकि he was lawyer and he also remained or he also worked as the judge there, so he was well aware of the police system, he was well aware of the legal system, and he was well aware of the criminal activities that were going on in his time period. So utilizing his own personal experiences, he created that novel. And after that, in 1749, he published his most reputed novel or most well known novel. It is A History of Tom Jones. ठीक है. अ फाउंडलिंग, एक ऐसा बच्चा कि जिस जो कि मिला था. ठीक है. और जोसेफ एंड्रयूज की तरह हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स जो है, ये भी पिकरस नेचर का नावल है, जो कि टॉम जोन्स के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता है, जो कि ब्रिटेन में वो घूमते हुए जिन भी एडवेंचर्स को उसको सामना करना पड़ता है. टॉम जोन्स चूंकि फाउंडलिंग है, यानी कि इसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में इसकी स्टोरी बयान की गई है. और प्लॉट इसका वेल निटेड है, यानी कि क्लोजली कनेक्टेड इवेंट्स हैं जो कि इस नावल के अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं. उनके अंदर ऑब्वियसली ट्विस्ट आते हैं, लेकिन मेन स्टोरी जो है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है. और इट इज़ अ नावल दैट कंसिस्ट ऑफ 18 बुक्स, यानी कि 18 जिल्दों पर की नावल मुश्तमिल है.
और ऑब्वियसली इट इज़ अ क्वाइट लेंथी नॉवल, ठीक है। आखिरी जो वर्क था हेनरी फील्डिंग का वो एमिलिया था। एमिलिया वाज पब्लिश्ड इन 1751 एंड अनलाइक हिज प्रीवियस नॉवेल्स, यहाँ पे सेंट्रल करेक्टर जो है यानी कि फर्स्ट जो उसका नावल है उसमें जोसेफ एंड्रयूज है, दूसरे जो उसका करेक्टर है उसमें एक पुलिस इन्फॉर्मर जो कि पुलिस के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, वो उसका लीडिंग करेक्टर। लेकिन इस नावल के अंदर वी हैव अ फीमेल करेक्टर, और ये जो फीमेल करेक्टर है शी सफर्स फ्रॉम वेरियस हार्डशिप्स, और आखिरकार वो जब उसको इनहेरिटेंस रिसीव होती है तो वो सेटल डाउन करती है, ठीक है। और इसमें उसकी स्टोरी जो है यानी कि उसकी हार्डशिप्स की स्टोरी उसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो एमिलिया जो है वो चूंकि डोमेस्टिक हार्डशिप्स और यानी कि घरेलू मसाइल और इनहेरिटेंस के जो इश्यूज हैं इनको डील करता है, तो इस वजह से एमिलिया इज नोन एज अ डोमेस्टिक नावल, इसको डोमेस्टिक नावल के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। अब हेनरी फील्डिंग जो है ऑल्दो ही इनिशियली स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज अ प्ले राइट, यानी कि एक ड्रामा निगार के तौर पे उसने अपनी अदबी जो उसकी ज़िंदगी थी उसके सफ़र का उसने आगाज़ किया, लेकिन ही इज़ बेस्ट नोन एज ए नावलिस्ट, उसको नावलिस्ट के तौर पे जो है वो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, और हेनरी फील्डिंग को टाइटल दिया गया था फादर ऑफ इंग्लिश नावल, और ये टाइटल उनको सर वॉल्टर स्कॉट की जानिब से दिया गया था, ठीक है। अच्छा, हेनरी फील्डिंग ने इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बिकॉज ही हैड एजुकेशन ऑफ लॉ एंड ही आल्सो सर्व्ड एज मैजिस्ट्रेट के तौर पे भी सर्व किया, एंड ही एस्टैब्लिश्ड पुलिस सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। हेनरी फील्डिंग जो था उसने पुलिस सिस्टम या पुलिस फोर्स जो थी उसको इस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो जहाँ तक उसकी सर्विस का ताल्लुक है या उसकी एबिलिटीज़ का ताल्लुक है तो ये कहा जाता है कि ही वॉज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, और इंतहाई ईमानदारी से उसने अपनी खिदमात जो थी वो अपने माशरे के लिए उनको दिया, ठीक है। 1754 के अंदर हेनरी फील्डिंग की डेथ हुई बिकॉज ऑफ अ लिवर डिसीज, ठीक है। So that was the first section that was connected with life of Henry Fielding. Now we are going to discuss his theory of novel, ठीक है। इसमें प्रीवियस जो हमारा पेपर था पास्ट पेपर एक अदद उसमें इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। सो थ्योरी ऑफ नॉवल को आपने फोकस करके ज़रा सुनने की कोशिश करनी है। जी, तो हेनरी फील्डिंग जो है वो चूंकि कॉन्शियसली एक न्यू जॉनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था, तो उसने अपने वर्क्स के अंदर खासकर अगर हम जोसेफ एंड्रयूज और प्रीफेस टू जोसेफ एंड्रयूज की बात करें तो इसके अंदर इसने अपनी थेरी ऑफ नावल जो है वो अपनी इसने प्रेजेंट किया कि ये जो न्यू वर्क है ये किस पैटर्न पे होगा। तो इसके कुछ हिंट्स तो हमें इसके टाइटल से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे इसका टाइटल क्या है कि अ हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड हिज फ्रेंड अब्राहम एडम्स, और दूसरा अ हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, यानी कि ये दोनों जो उसके मेजर नॉवेल्स हैं उसमें हिस्ट्री का वर्ड आया है। तो मतलब ये कि हेनरी फील्डिंग जो है वो ये बताना चाहता है कि वो एक हिस्ट्री बयान कर रहा है। अब ये जो हिस्ट्री है इट इजंट कि इट इज अ रियल हिस्ट्री, रादर इट इज हिस्ट्री ऑफ इमेजिनेटिव नेचर, यानी कि फिक्शनल नेचर की हिस्ट्री है जिसको वो प्रोज की फॉर्म में अपने अपने प्रोज वर्क के अंदर डिस्क्राइब करेगा। और ये हिस्ट्री इट विल बी रिलेटेड टू हिज सेंट्रल करेक्टर। अब जहाँ पे जोसेफ एंड्रयूज की बात करें तो जोसेफ एंड्रयूज की हिस्ट्री है, और अगर दूसरी जानिब बात करें तो वो हिस्ट्री टॉम जोन्स की आती है, ठीक है। और फिर वो ये भी बताता है कि ये जो वर्क्स हैं दे आर ऑफ फिक्शनल नेचर, यानी कि दे आर हिस्ट्रीज, यानी कि दे रिलेट स्टोरीज ऑफ इंडिविजुअल्स के जो कि वाकयात हो चुके हैं, लेकिन दे आर ऑफ fictional nature, they are of not real nature, ठीक है। and he says that because I am founder of a new province of work, यानी कि मैं एक नई फॉर्म ऑफ वर्क जो है उसकी बुनियाद रखने जा रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ। तो वो ये कहता है कि आई एम एट लिबर्टी, यानी कि मुझे आज़ादी हासिल है कि मैं जैसे मर्जी इसके कवानीन बनाता फिरूं। तो वो अपनी मर्जी के कवानीन बनाता है इसके हवाले से कि ये वर्क इस पैटर्न पे होना चाहिए, ये वर्क जो है ये इस पैटर्न पे होना चाहिए। तो उसने फिर ये जो है ये जो न्यू जॉनरा ऑफ लिटरेचर है जिसको उसने हिस्ट्री, यस,
के तौर पे आइडेंटिफाई किया, इसके वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो साथ साथ लिखता है। ठीक है। प्रीफेस के अंदर जोसेफ एंड्रयूज का प्रीफेस जो है वो अपने वर्क को एपिक डिक्लेयर करता है कि ये जो मेरे वर्क्स हैं ये एपिक हैं। अब एपिक की डेफिनेशन अगर आप देखें तो एन एपिक इज अ पीस ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विद ग्रैंड इवेंट्स इन अ ग्रैंड लैंग्वेज। ठीक है, इनकी कोई बड़ा ही अजीम शान किस्म का वाक़या होता है और उस वाक़े को एक अजीम शान किस्म की लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है। तो एपिक पोएम्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो एपिक में जो एक एपिक है पैराडाइज लॉस्ट से आप वाकफियत रखें। पैराडाइज लॉस्ट जो है वो आप देखें कि उसका टॉपिक कितना अजीम शान, यानी कि इंसानियत के आगाज के ऊपर वो लिखता है कि किस तरीके से हजरत आदम जो है उनको जन्नत से निकाला गया, उनको ज़मीन पे फेंका गया सेटन ने, किस तरीके से उनको सिड्यूस किया उनको रस्से से, तो ये उसका टॉपिक है। और फिर मिल्टन उसको जिस लैंग्वेज में लिखता है वो लैंग्वेज भी इंतहाई लॉफ्टी किस्म की लैंग्वेज है। सिमिलरली अगर आप प्रीवियस जो एपिक्स हैं इनियड को देखें या फिर आप ओडिसी को देखें, तो ये जितनी भी एपिक्स हैं ये बहुत ही मतलब के ग्रैंड किस्म के टॉपिक्स के साथ ये एपिक्स डील करती हैं और उनकी लैंग्वेज बड़ी लॉफ्टी है। और एपिक जो है वो चूंकि एडवेंचर्स के ऊपर मुश्तमिल होती है तो अब ये चीज़ जो है ये भी एपिक है, क्योंकि ये एक शख्स के जो एडवेंचर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। लेकिन ये जो एपिक है सीरियस एपिक नहीं है, बट इट इज़ अ कॉमिक एपिक, और इसके लिए एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है मॉक एपिक। मॉक एपिक या फिर कॉमिक एपिक जो होती है उसकी क्वालिटीज ये होती हैं कि एक चीज तो एपिक की होती है और दूसरी चीज एपिक की नहीं होती। मिसाल के तौर पे द रेप ऑफ द लॉक आपने पढ़ी होगी क्लासिकल पोइट्री के अंदर। तो उसके अंदर ये है कि जिस लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करता है वो लैंग्वेज बहुत लॉफ्टी है, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रिवियल नेचर का है, एक आम नेचर का है, कॉमन नेचर का है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये है कि जो हेनरी फील्डिंग जोसेफ एंड्रयूज के अंदर जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है ग्रैंड किस्म की लैंग्वेज है, लॉफ्टी किस्म की लैंग्वेज है, लेकिन जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो ट्रिवियल नेचर का है, यानी कि एक आम घरेलू मुलाजिम की जो जिंदगी है उसको डिस्क्राइब किया गया है। इस नॉवल के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स पेश आते हैं। उन इंसिडेंट्स को हेनरी फील्डिंग इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग हो रही हो, ये जैसे बहुत बड़े कोई दो हीरोज जो हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एपिक पोइट्स की एक ट्रेडिशन ये होती है कि वो डेटीज को इन्वोक करते हैं, उनकी हेल्प मांगते हैं। जैसे मिल्टन जो है वो सिंग हेवनली म्यूज, यानी कि अल्लाह ताला जो है वो उनसे मदद मांगता है अपनी इस नज़म को कंप्लीट करने के लिए। इसी तरीके से ग्रीक राइटर्स या रोमन राइटर्स जो थे जो उन्होंने एपिक्स लिखी वो अपने अपने गॉड्स जो थे उनसे वो हेल्प सीख करते थे। ठीक है। हेनरी फील्डिंग भी हेल्प सीख करता है, लेकिन वो उन देवी देवताओं से हेल्प सीख नहीं करता, बट वो जिन चीज़ों को इन्वोक करता है, जिनसे वो हेल्प मांगता है, वो सोशल ईवल्स हैं, वो ह्यूमन फॉलीज हैं, जिसमें वैनिटी है, जेलसी है। इन चीज़ों से वो हेल्प लेता है अपने इस नावल को या अपने इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हेनरी फील्डिंग की एक और थ्योरी है, एक और उसका जो आइडिया है रिगार्डिंग हिज न्यू वर्क दैट ही वाज अबाउट टू अकम्प्लिश और दैट ही वाज अबाउट टू डू इज कि उसके नॉवेल्स जो हैं वो वेरिएशन ऑफ रोमांस है। अब रोमांस मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हमने जब हिस्ट्री ऑफ नॉवल को डिस्कस किया तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो रोमांसेस थे वो प्रोज फिक्शन की सूरत में लिखे जाते थे, लेकिन उनके अंदर जो है वो सुपर नेचुरल बीइंग्स जो थे वो होते थे। अब उसी की ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है कि एक तो सुपर नेचुरल बीइंग्स को रिमूव कर दिया गया, दूसरा उसमें से किंग्स, नाइट्स और अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी के जो लोग हैं उनको रिमूव कर दिया गया, और जो इनका सब्जेक्ट मैटर था वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग जो थे उनको बना दिया गया। तो अब ये चूंकि वो बताता है कि ये रोमांस की वेरिएशन है जो मेरा वर्क है, या ये जो न्यू प्रोविंस ऑफ लिटरेरी वर्क्स में इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ, तो वो फिर
एक्सप्लेन करता है टॉम जोन्स के अंदर कि रोमांसेस के अंदर मॉन्स्टर होते थे, लेकिन मेरे ये जो वर्क्स हैं, ये मेरे नॉवेल्स जो हैं, इनके अंदर एक्शंस होंगे, और वो एक्शंस किसके होंगे? इंसानों के एक्शंस होंगे, क्योंकि मॉन्स्टर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ। ठीक है, तो उसके नज़दीक जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है हिस्टोरियंस के लिए, वो ह्यूमैनिटी इटसेल्फ है, यानी कि इंसान जो है वो सबसे बड़ा मौजू है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। तो उसने फिर ह्यूमरस एस्पेक्ट जो है उसको सिलेक्ट किया, और ह्यूमरस एस्पेक्ट लिखना था, उसने सीरियस नहीं लिखना था। और इससे पहले एरिस्टोटल की थ्योरी जो है वो थिएटर की, के ड्रामास जो होते हैं जो कि लॉफ्टी नेचर के होते हैं, दे डील विद द हायर पीपल, और वो सब्जेक्ट उनका सीरियस नेचर का होता है। तो अब इसने लाइटर पर्सपेक्टिव में लिखना था, तो इस वजह से इसने हायर रैंक के लोगों को नहीं उठाया, बल्कि पीपल ऑफ इंफीरियर रैंक्स एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इंफीरियर मैनर्स, उनके मैनर्स भी इंफीरियर हैं, वो लोग भी इंफीरियर हैं, और उनकी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो डिस्क्राइब करता है। अब चूंकि उसने इंफीरियर किस्म के लोग उठाने थे, यानी कि वो लोग के जिनकी माशरे में कोई वैल्यू नहीं है और जो कि अक्सरियत की नहीं होती, तो इस वजह से वो आम लोग, फुटमैन, मेड सर्वेंट्स, कोचमैन, कंट्री अपना पार्सन्स, इन कीपर्स, यानी कि ये जो होटल या मेहमान सराय की देखभाल करने वाले लोग होते हैं, उनको इन कीपर्स कहा जाता है। उन लोगों को वो अपनी कहानी के अंदर किरदारों के तौर पे प्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ हेनरी फील्डिंग की थ्योरी ऑफ नॉवेल है रियलिज्म। वो ये चाहता है कि भाई जो एक्शंस नॉवल के अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे, या वो करेक्टर्स जो कि नॉवल के अंदर प्रेजेंट किए जाएंगे, दे शुड बी केप्ट विद इन लिमिट्स ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी, कि यानी कि मुमकिनात के अंदर वो करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और वो अपने रीडर्स के सामने इन करेक्टर्स को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि रीडर्स अपने आप को उन करेक्टर्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। वट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन टू परफॉर्म, इट स्केयर्स फॉर मैन टू बिलीव, कि वो काम के जो कि इंसान कर नहीं सकता, वो चीज़ इंसान के लिए अ, डर क्रिएट करती है। तो उसके नैरेटिव्स जो हैं, या उसकी स्टोरीज जो हैं, उसके करेक्टर्स जो हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो कि हु आर विद इन द लिमिट्स ऑफ द पॉसिबिलिटी। ठीक है, जो कि पॉसिबिलिटी की लिमिट्स के अंदर हैं। हेनरी फील्डिंग जिन करेक्टर्स को अपने नॉवेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है, ये वो करेक्टर्स हैं जो कि आम लोग हैं, ठीक है, जो कि आपकी तरह है, मेरी तरह, और उसका मकसद इन किरदारों के जरिए मॉरल वैल्यूज, यानी कि इखलाकी लेसन्स देना। और वो ये कहता है कि हर एक शख्स जो है, दे हैव गुड साइड एज वेल एज इवल साइड, और जो ज़्यादातर उसके करेक्टर हैं वो गुड साइड रखते हैं, लेकिन जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बीइंग, के उसके अंदर एक अच्छाई का एलिमेंट भी होता है और एक बुराई का एलिमेंट भी होता है। तो वो ये कहता है कि उसके किरदार जो हैं वो बुराइयां भी कमिट करते हैं, लेकिन वो इंसानी कमजोरी या एक्सीडेंटल नेचर की बुराइयां होती हैं, यानी कि हार्मफुल किस्म की बुराइयां जो हैं उसके करेक्टर्स प्रेजेंट नहीं करते। और वो ये कहता है कि राइटर के लिए ये चीज़ मुमकिन भी नहीं है कि वो एट द सेम टाइम अच्छाई और बुराई दोनों को प्रेजेंट करे। तो अगर वो अच्छाई प्रेजेंट कर रहा है तो बुराई जो है वो शेड में चली जाती है, और अगर वो बुराई को प्रेजेंट कर रहा है तो अच्छाई शेड में चली जाती है, यानी कि एक चीज़ एट अ टाइम जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, फर्दर मोर हेनरी फील्डिंग अपने किरदारों के बारे में ये कहता है कि उसके किरदार जो है वो इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि टाइप्स हैं। टाइप से मुराद ये है कि एक किरदार जो है, मिसाल के तौर पे अगर जोसेफ एंड्रयूज का करेक्टर है, तो जोसेफ एंड्रयूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि जोसेफ एंड्रयूज अपने जैसे जितने भी लोग हैं उन सब को वो रिप्रेजेंट करता है। तो वो ये कहता है कि आई डू नॉट डिस्क्राइब मैन बट मैनर्स, एंड नॉट इंडिविजुअल बट स्पीशीज, यानी कि अगर एक फुटमैन है, फुटमैन को डिस्क्राइब किया गया है, तो उसके ज़रिए जितने भी फुटमैन होते हैं उन सबको डिस्क्राइब किया गया। अगर एक उसने इन कीपर को, यानी कि मेहमान सराय का जो रखवाला या रखवाली होती है, अगर उसको डिस्क्राइब किया है, तो उस एक करेक्टर के ज़रिए उसने जितने भी इंग्लैंड के अंदर या उस इलाके के अंदर इन कीपर्स हैं उन सब के किरदारों की किरदार कशी की है। तो वो ये कहता है कि मेरे करेक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स नहीं, बल्कि वो टाइप्स हैं, यानी कि स्पीशीज हैं। ठीक है,
अब ये स्पीशीज उसने इस तरह से अचीव किया है क्योंकि हेनरी फील्डिंग जो है वो मैंने आपको बताया कि वाज अ लॉयर, ही बिकेम judge, and he established police force as well. So he had wide exposure to society. He had wide exposure to wide range of करेक्टर्स इन हिज लाइफ, तो वो अपने किरदारों से इस किस्म के एक्शंस परफॉर्म करवाता है जो कि उस तबके के लोगों से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में वो ये कहता है कि आई एम डिस्क्राइबिंग टाइप्स एंड आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग इंडिविजुअल्स। ठीक है। अच्छा, अपने टाइटल के अंदर या अपने प्रीफेस के अंदर ही जोसेफ एंड्रयूज के अंदर हेनरी फील्डिंग ये मेंशन करता है कि आई एम फॉलोइंग इन द इमिटेशन और आई एम इमिटेटिंग द वर्क्स ऑफ सर्वेंटेस द ऑथर ऑफ डॉन क्यूटे, यानी कि वो उनके वर्क्स को इमिटेट करने का वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि मैं उसी पैटर्न पे ये नावल जो है वो लिखने जा रहा हूँ। डॉन क्यूटे जो है वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड के एडवेंचर्स परफॉर्म करता है और वो कॉमिक नेचर का करेक्टर है, और वो पूरी कंट्री साइड यानी कि वो जो पूरा दही इलाका है उसमें वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ही बिलीव्स दैट ही इज पार्टिसिपेटिंग इन ग्रेट बैटल्स। तो जोसेफ एंड्रयूज के अगर हम करेक्टर को देखें या उसके इर्द गिर्द घूमते अगर हम इंसिडेंट्स को देखें, तो जोसेफ एंड्रयूज की स्टोरी इज नो डिफरेंट, हिज स्टोरी इज आल्सो सेम, कि वो शहर से निकलता है एंड ही इज बाउंड टू ट्रेवल टू हिज विलेज, एंड on the way he gets robbed, and on the way he goes to an inn, वहाँ पे वो लड़की इन्वॉल्व हो जाती है, फिर वहाँ से उसको वो आगे मजीद आगे चलते जाते हैं, फिर उनको फैनी मिलती है, फैनी इज अटैक्ड बाय पीपल, फिर उनको बांध दिया जाता है एडम। मतलब कि मुख्तलिफ किस्म के इंसिडेंट्स हैं, और ये इंसिडेंट्स जो हैं ये एडवेंचर्स हैं या वो बैटल्स हैं जो कि जोसेफ को लड़ना पड़े ऑन हिज वे और ऑन हिज जर्नी, के जिस जर्नी को वो अंडरटेक कर रहा था। ठीक है। तो जोसेफ एंड्रयूज अब इस पर्सपेक्टिव में पिकरस नावल है, यानी कि एक पिकारो, एक रोग जो है, एक हीरो जो है उसके ट्रेवल्स जो है वो उनको डिस्क्राइब करता है, और इस सफ़र के दौरान उसको मुख्तलिफ किस्म के एडवेंचर्स जो हैं वो देखना पड़ते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ठीक है। और मैंने बताया कि रास्ते में उसकी मुलाकात जो है वो दो किरदारों के साथ होती है, और ये दोनों किरदार उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक उसकी लवर है फैनी, फैनी ब्राउन, और फिर उसका दोस्त है पार्सन एडम्स। पार्सन एडम्स जो है वो काफ़ी हद तक जोसेफ की हेल्प करता है, वो फैनी की जो है वो इज़्ज़त भी बचाता है, उसको रेप होने से बचाता है, और जोसेफ की भी वो काफ़ी पर्सपेक्टिव में जो है वो हेल्प करता है। तो इन सारे एडवेंचर से गुजरने के बाद फाइनली जोसेफ जो है और फैनी सेटल डाउन होते हैं। ठीक है। सारे मैटर जो है वो रिजॉल्व होते हैं, और उनकी आपस में शादी हो जाती है। अब हेनरी फील्डिंग का ये जो नावल है इट इज़ लेंथी, लंबा है, यानी कि काफ़ी लंबा वर्क है, और इसके अंदर एपिक के करेक्टरिस्टिक मौजूद हैं, इसके अंदर रोमांस के भी करेक्टरिस्टिक मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर कॉमिक इवेंट्स जो हैं या जिस पर्सपेक्टिव में उसने इवेंट्स को डिस्क्राइब किया, तो इट डज नॉट मेक इट अ रियल एपिक, रादर इट मेक्स इट अ मॉक एपिक। ठीक है। और फिर रियलिज्म को इंड्यूस किया उसने विद द हेल्प ऑफ करेक्टर्स बिलोंगिंग टू लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जो आम लोग हैं उनकी मदद से उसने रियलिज्म, रियलिस्टिक इंसिडेंट्स, रियलिस्टिक इवेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है। जी, तो ये सारी बातें जो अब तक हमने डिस्कस की, ऑल दीज थिंग्स फॉर्म हेनरी फील्डिंग्स थ्योरी ऑफ नावल, यानी कि जो उसकी थ्योरी ऑफ नावल है कि एक नावल होता क्या है और एक नावल को कौन से एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको हेनरी फील्डिंग की थ्योरी ऑफ नावल का पता चल गया। तो यहाँ पे हम जो हमारी डिस्कशन का ये हिस्सा है इसका हम इख्तिताम करते हैं, और अगला हिस्सा है हमारा समरी ऑफ जोसेफ एंड्रयूज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में टच करेंगे इंशाल्लाह। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।